بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی کا عبرتناک و سبق آموز واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ اندلسی بہت بڑے بزرگ، زاہد، عابد اور عارف باللہ کے علاوہ حدیث و تفسیر میں بھی ایک مایہ ناز جلیل القدر امام اور مفسر محدث تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں حفظ یاد تھیں اور قرآن مجید کو تمام روایات میں قرات سبع و عشرہ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کے تلامذہ اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے تلاندہ اور مریدین بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے، جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی بھی تھے۔ حضرت شبلی نے فرمایا کہ ہمارا قافلہ خدا تعالی کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام سکون اور اطمینان کے ساتھ منزل بمنزل مقصود کی طرف جا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ ہمارا گزرا عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اب تک نماز ادا نہ کر سکے تھے۔ ہم نے بستی میں پہنچ کر پانی تلاش کیا۔ ہم نے پوری بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے، جن میں آفتاب پرستوں، یہودیوں اور صلیب پرستوں، نصرانیوں کے راہبان اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا اور کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم سب کو تعجب ہوا اور ہم ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر ہم گھومتے گھومتے بستی کے کنارہ پر ایک کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر کر ایک دوسرے کو پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد حضرت ابو عبداللہ اندلسی کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو کہ اپنے خدا داد حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت زیور اور لباس سے بھی آراستہ تھی۔ شیخ کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے ساتھ چار ہوتے ہی حالت بدلنے لگی اور چہرہ بدلنے لگا۔ اس انتشار طبع کی حالت میں شیخ اس کے پاس موجود لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے جواب دیا کہ یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا، پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے؟ کیا اس کا باپ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس لڑکی کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقیل اور سمجھدار آدمی ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے باپ کے مال و متاع خشم و خدم پر تکبر کرتے ہوئے کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور پورے 3 دن اسی طرح گزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے بات وغیرہ کرتے ہیں۔ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز ادا کرتے تھے۔ مریدین اور تلامذہ کی کثیر تعداد شیخ کے ساتھ تھی، لیکن سب سخت پریشانی میں تھے، کوئی تدبیر نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ تیسرے دن یہ حالت دیکھ کر میں نے آگے قدم بڑھایا، تعجب اور پریشان حال میں کہا کہ کچھ تو فرمائیں، کیا وجہ ہے؟ شیخ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرے عزیز وے، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپا سکوں گا؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء و جوارح پر اس کا تسلط ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی نے فرمایا، اے میرے آقا، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں اور علم و فضل اور زہد و عبادت میں شہرہ آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد اس وقت 12,000 ہے۔ بہت ہو چکا ہے، قرآن مجید کے توفیل سے ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزو، میرا اور تمہارا فیصلہ تقدیر خداوندی ہو چکا ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے اور مجھ سے ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں۔ شیخ نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے میری قوم، فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، اب یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب و غریب واقعہ پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ دور ہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے امنڈ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ ابو عبداللہ اندلسی کی زیارت کے لیے
शहर बगदाद से बाहर इस्तकबाल के लिए आए और लोग शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी को हमारे दरमियान न देखकर सबब दरियाफत किया कि शेख साहब क्यों नहीं आए, वो कहाँ हैं। हमने सारा वाकया लोगों को बता दिया। वाकया सुनकर लोगों में कहराम मच गया। शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी के मुरीदों में से जमायत की कसीर तादाद इसी गम व हसरत में उस वक्त आलम आखरत को सुधार गए लिए, और बाकी लोग गड़गड़ाकर खुदाए बेनियाज की बारगाह में दुआएं करने लगे कि ए मक़ल्लबिल क़ुलूब, हमारे शेख को हदायत दे और फिर अपने मर्तबे पर लौटा दे। शेख के जाने के बाद बगदाद की तमाम खानकाहें बंद हो गईं और 1 साल तक इसी गम व अफसूस में शेख के फिराक में लौटते रहे। खबर तो लें कि कहाँ हैं, किस हाल में हैं। चनांचे हमारी एक जमात ने शेख की तरफ सफ़र किया और इस गांव में पहुंचकर वहां के लोगों से शेख का हाल दरियाफत किया तो गांव वालों ने बताया कि वो तो जंगल में सूर चरा रहे हैं। हमने कहा खुदा की पनाह ये किया हो गया है। गांव दालों ने बताया कि शेख ने सरदार की लड़की से मंगनी करना चाही तो उसके बाप ने उस शर्त पर मंजूर किया कि वो जंगल में सूर चराया करेगा। शेख ने हाँ कर दी, चनांचा शेख सूर चराने की खिदमत पर मामूर है। हम ये सुनकर हक्का बका हो गए और गम से हमारे कलीजे फटने लगे। आंखों से बेसाख्तहू आंसुओं का तूफान अमंडने लगा। बेमुश्किल हम अपने दिल थाम कर इस जंगल में पहुंचे जहां शेख सूर चरा रहे थे। हमने देखा कि शेख पर नुसारी की टोपी है और कमर में जुनार बांधी हुई है और इस लाठी पर टेक लगाए हुए खंजीरों के सामने खड़े हैं, जिस लाठी से वाज वो खतबा के वक्त सहारा लिया करते थे। शेख की उस हालत ने हमारे जख्मों पर नमक पाशी का काम किया। शेख ने हमें अपनी तरफ आते देखकर अपना सर झुका लिया। हमने करीब ने पहुंचकर अस्सलाम अलैकुम कहा। शेख ने दबी हुई आवाज में वालेकुम अस्सलाम कहा। हजरत कबली, ए शेख, उस इल्म व फजल और हदीस व तफसीर के होते हुए भी आज आपका ये हाल है। कीनीवन शेख अंदलसी, मेरे भाइयों, ये मैंने अपने अख्तियार से नहीं किया। मेरे मौली ने मुझे जैसा चाहा वैसा ही कर दिया और उस कदर मुकर्रब बनाने के बाद जब चाहा मुझे अपने दरवाजे से दूर फेंक दिया, और उसके फैसले को कौन टाल सकता है। ए मेरे अजीजू, खुदाए बेनयाज के कहर व गजब से डरू, अपने इल्म व फजल पर मगरूर ना हूं। उसके बाद शेख ने आसमान की तरफ नजर उठाकर कहा, ए मेरे मूली, मेरा गुमान तेरे बारे में तो ऐसा न था कि तो मुझे जलील व ख्वार करके अपने दरवाजे से निकाल देगा। और ये कहकर खुदा से इस्तगासा करना और रोना शुरू कर दिया। शेख ने आवाज देकर कहा कि ए टीली, अपने गैर को देखकर अबरत हासिल करो। हदीस में है सईद मनवाज वगैरह, यानी नेक बख्त वो है जो दूसरों को नसीहत करे। हजरत शबली ने रोने की वजह से लहराती हुई आवाज से निहायत दर्दनाक लहजा में कहा, ए परवरदिगार, हम तुझ ही से तलब करते हैं और तुझ ही से इस्तिगासा करते हैं। हर काम में हमको तुझ पर ही भरोसा है। हमसे उस मुसीबत को दौर फरमा दे, उस मुसीबत को तेरे सिवा कोई दौर करने वाला नहीं। खंजीर, उनका रोना और उनकी दर्दनाक आवाज सुनते ही सब के सब वहीं जमा हो गए और जमीन पर मर्ग बसमल की तरह लौटना, तड़पना और चलाना शुरू हो गए। चनांचा ये मैदान हशर का नमूना बन गया। इधर हजरत शेख हसरत के आलम में जार व कितार रो रहे थे। हजरत शबली ने फरमाया, शेख आप हाफिज कुरान थे और कुरान को 7 कुरात से पढ़ा करते थे, अब भी उसकी कोई आयत याद है? शेख ने फरमाया, ए अजीजू, मुझे कुरान की 2 आयत के सिवा कुछ भी याद नहीं रहा। हजरत शबली ने फरमाया कि वो आयतें कौन सी हैं? शेख ने फरमाया, एक तो ये है वो मन यहनिल्लाह फमाला, मन मकरमुनिल्लाह या फल मायशा, जिसको अल्लाह जलील करता है उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं, बेशक अल्लाह जो चाहता है वो करता है। और दूसरी आयत ये है, वमन यतबद्दलिल कुफ्र बाला ईमान फ़क़त ज़ल सवा इस सबील, जिसने ईमान के बदले में कुफ्र अख्तियार किया, तहकीक वो सीधे रास्ते से गमराह हो गया। हजरत शबली ने फरमाया, ए शेख, आपको 30,000 हदीसें बमा इस्नाद के ज़बानी याद थीं, अब भी इनमें से कोई एक हदीस याद है? शेख ने फरमाया, हाँ, एक हदीस याद है और वो ये है, मन बदल दीना फ़क़्तुलू, जो शख्स अपना दीन इस्लाम बदल डाले उसको कत्ल कर डालो। हजरत शबली फरमाते हैं कि हम शेख का ये हाल देखकर बाद हसरत व गम के शेख को वहीं छोड़कर वापस हुए और बगदाद की तरफ का कस्त किया।
अभी हम 3 मंजिल तय करने पाए थे कि तीसरे रोज अचानक शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी को अपने आगे देखा कि नहर से गसल करके निकल रहे हैं और बाआवाज बुलंद शहादतें वाशहदन ला इलाहा इल्लल्लाह वाशहदान मुहम्मदन रसूलुल्लाह पढ़ते जा रहे थे। इस वक्त हमारी खुशी का अंदाजा वही शख्स लगा सकता है जिसको मुसीबत से पहले हमारी मुसीबत और हसरत व गम का अंदाजा हो। हजरत शबली फरमाते हैं कि शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी ने करीब पहुंचकर मुझे कहा, पाक कपड़े दो, और कपड़ा लेकर सबसे पहले नमाज की नीयत बांधी और हम मंतजर रहे कि शेख नमाज से फारिग हूं तो मफसल वाकया सुनेंगे। थोड़ी देर के बाद शेख नमाज से फारिग हुए और हमारी तरफ मतवज्जा होकर बैठ गए। हजरत शबली फरमाते हैं कि हम इस खुदाए कदीर अलीम का 1000 बार शुक्रगुजार हैं जिसने आपको हमसे जदा करके फिर मिलाया और हमारी जमायत की रौनक बिखर जाने के बाद फिर दरस्त फरमा दी। आप जरा बयान तो फरमाएं कि शदीद इनकार के बावजूद फिर आपका आना कैसा हुआ। शेख फरमाते हैं, मेरे दोस्तों, जब तुम मुझे छोड़कर वापस हुए तो मैंने खुदा की बारगाह में गड़गड़ाकर अल्लाह से दुआ की कि खुदा बंदा मुझे इस मुसीबत से नजात दे, मैं तेरा खुताकार बंदा हूँ। खुदा ताली ने मेरी आवाज़ सुन ली, मेरे सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए गए। हज़रत शबली ने फरमाया, किया आपके उस आजमाइश का कोई सबब था? हज़रत शेख ने फरमाया, हाँ, जब हम गांव में उतरे और बदखानों और गिरजा घरों पर हमारा गुजर हुआ, आतिश परस्तों और सलीब परस्तों को गैर अल्लाह की इबादत में मशगूल देखकर मेरे दिल में तकब्बुर और बड़ाई पैदा हुई कि हम मोमिन मोहदीन और ये कमबख्त कैसे जाहल और अहमक हैं कि बेहिस व बेशूर चीज़ों की प्रस्तुश करते हैं। मुझे उसी वक्त एक गैबी आवाज़ आई कि ये ईमान व तौहीद, जो कुछ भी तुम्हारा ज़ाती कमाल नहीं, ये सब कुछ हमारी तौफीक से है। क्या तुम अपने ईमान को अपने अख्तियार में समझते हो जो उनको हकीर समझते हो? और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें अभी बतला दें। और मुझे इस वक्त ये एहसास हुआ कि गविया कि एक परंदा मेरे कल्ब से निकलकर उड़ गया जो कि दर हकीकत ईमान था। हज़रत शबली ने फरमाया कि उसके बाद हमारा काफिला निहायत खुशी और कामयाबी के साथ बगदाद पहुंचा। सब मुरीदीन शेख की ज़ियारत और उनके दोबारा कबूल इस्लाम से खुशियां मना रहे थे। खानकाहें और हजरबे खोल दिए गए। बादशाह वक्त शेख की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ और कुछ हदाया पेश किए। शेख फिर अपने कदीम शुगल में मशगूल हो गए और वही हदीस व तफसीर वाज व तज़कीर तालीम व तरबियत का दौर शुरू हो गया। खुदावंद आलम ने शेख को भलाया हुआ इल्म फिर अता फरमा दिया, बल्कि अब निस्बता पहले से हर इल्म वफन में तरकी थी। तलांदा की तादाद 40,000 हो गई और इसी हालत में एक मद्दत गुजर गई। एक रोज हम सुबह की नमाज पढ़कर शेख की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक किसी शख्स ने हुजरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैं दरवाजे पर गया तो देखा कि एक शख्स सियाह कपड़ों में लपटा हुआ खड़ा है। हज़रत शबली ने फरमाया, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? क्या मकसूद है? आने वाले ने कहा, अपने शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी से कह दो कि वो लड़की जिसको आप फिला गांव में छोड़कर आए थे आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। सच है, जब कोई और खुदा ताली का हो जाता है तो सारा जहां उसका हो जाता है, और जो अल्लाह से मुन्ना मोड़ लेता है तो हर चीज उससे मुन्ना मोड़ लेती है। हजरत खैली फरमाते हैं कि मैं शेख के पास गया, वाकया बयान किया। हजरत शेख सुनते ही जर्द हो गए और खौफ से कांपने लगे। उसके बाद इस लड़की को अंदर आने की इजाजत दी गई। लड़की शेख को देखते हैं जार व कितार रोने लगी। शिद्दत गम दम लेने की इजाजत नहीं देता था कि ये कुछ कलाम करे। शेख ने लड़की से मुखातिब होकर फरमाया, तुम्हारा यहां कैसे आना हुआ और यहां तक तुम्हें किसने पहुंचाया? लड़की ने कहा, ए मेरे सरदार, जब आप हमारे गांव से रुखसत हुए और मुझे खबर मिली तो मेरी बेचैनी और बेकरारी जिस हद तक पहुंची थी उसको मेरा दिल ही जानता है। न भूख रही न प्यास, नींद तो कहाँ आती। मैं रात भर इसी इत्तराब में रहकर सुबह के करीब जरा लेट गई थी और उस वक्त मुझ पर नींद गालिब आ गई। इसी हालत में मैंने ख्वाब में एक शख्स को देखा जो कह रहा था कि अगर तो मोमिनात में दाखिल होना चाहती है तो बत्तों की इबादत छोड़ दे और शेख की इत्तिबा कर, और अपने दीन से तो बह करके शेख के दीन में दाखिल हो जा। लड़की कहती है कि मैंने इसी आलम ख्वाब में उस शख्स को मुखातब होकर कहा, शेख का दीन क्या है? तो इस शख्स ने बताया कि उसका दीन इस्लाम है। मैंने कहा, इस्लाम क्या चीज़ है?
उसने कहा कि उस बात की दिल और ज़बान से गवाही देना कि खुदा ताली के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके बरहक रसूल और पैगंबर हैं। मैंने कहा तो ठीक है, मैं शेख के पास किस तरह पहुंच सकती हूँ? इस शख्स ने कहा, ज़रा आंखें बंद कर लो और अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। पर लड़की ने कहा, ठीक है, ये कहा और मैं खड़ी हो गई और हाथ इस शख्स के हाथ में दे दिया। वो शख्स मेरा हाथ पकड़े हुए थोड़ी दूर चलकर बोले, बस खोल दो। चनांचा मैंने अपनी आंखें खोलें तो अपने आप को दजला, एक नहर है जो बगदाद के नीचे बहती है, के किनारे पर पाया। अब मैं परेशान हो गई और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी कि मैं चंद मिनटों में कहां से कहां पहुंच गई। इस शख्स ने हुजरे की तरफ इशारा करके कहा कि ये सामने शेख का हुजरा है, वहीं चली जाओ और शेख से कह दो कि आपका भाई हजरत खुजर अलैहिस्सलाम आपको सलाम कहता है। मैं उस शख्स के इशारे के मुवाफिक यहां पहुंच गई और अब आपके खिदमत के लिए हाजिर हूं, मुझे मुसलमान कर लीजिए। शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी ने इस लड़की को मुसलमान करके अपने पड़ोस के एक हजर में ठहरा लिया कि यहाँ इबादत करती रहो। हलड़ की इबादत में मशगूल हो गई और जहद वो इबादत में अपने शरीक कथीर लोगों से सबकत ले गई। दिन भर रोज़ा रखती और रात भर अपने मालिक व खालिक बेनियाज के सामने हाथ बांधे खड़ी रहती। मेहनत से बदन ढल गया, हड्डी और चमड़े के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। आखिर उसमें मरीज हो गई और मरज इतना बढ़ गया कि मौत का नक्शा आंखों के सामने आने लगा और अब उसका सफर आखिरत आन पहुंचा। उसके दिल में उसके सिवा कोई हसरत बाकी नहीं रही कि एक मर्तबा शेख की जियारत से अपनी आंखें ठंडी कर ली जाएं, क्योंकि जिस वक्त से उस हुजरे में मकीम हुई थी, इस वक्त से न शेख ने उसको देखा और न ही शेख की जियारत हो सकी, जिससे आप चंद घड़ी के मेहमान की हसरत व गम का अंदाजा कर सकते हैं। आखिर शेख को बलवा भेजा कि मौत से पहले एक मर्तबा मेरे पास आकर शेख की जियारत हो जाए। शेख ये सुनकर फौरन तशरीफ लाए। जहां वो लड़की हसरत भरी निगाहों से शेख की जियारत के लिए तरस रही थी, मगर आंसुओं में डूबी हुई आंखें उसे एक नजर भी देखने की महलत नहीं देती। लेकिन इस लड़की की जबान बेजबान ये कह रही थी, दम आखिर है जालिम, देख लेने दे नजर भरकर सदा, फिर दीदा तर करते रहना इश्क अफशानी। आखिर शेख साहब आए तो लड़की ने लड़खड़ाती हुई जबान और बैठी हुई आवाज से इतना लफ्ज कहा, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। शेख ने शफकत आमेज आवाज से सलाम का जवाब देने के बाद फरमाया, तुम घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह अनकरीब हमारी मुलाकात जन्नत में होने वाली है। लड़की शेख के नासहाना कलमात से मुतासिर होकर खामोश हो गई और अब ये खामोशी और मेहर सकूत सुबह क़यामत से पहले न टूटेगी। उस खामोशी पर कुछ देर नहीं गुजरी थी कि मुसाफिर आखरत ने इस दार फानी को खैर बात कहा, अना लल्ला वाना लिए राजिऊन। शेख इस लड़की की वफात पर गमजदा हुए, मगर शेख की हयात भी दुनिया में चंद रोज से जायद नहीं रही। हजरत एली फरमाते हैं, चंद ही रोज के बाद शेख साहब इस आलम फानी से रुखसत हुए। कुछ दिनों के बाद मैंने शेख को ख्वाब में देखा कि जन्नत के एक पर फजा बाग में मकीम है और 17 हूरों से आपका निकाह हुआ है, जिनमें पहली वो औरत है जिसके साथ दुनिया में निकाह हुआ। वो औरत यही लड़की थी और अब वो दोनों इब्दालाबाद जंद की बेशकीमती नामतों में खुश व खर्म हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।